Good morning friends and welcome once again to Trans India, Real People, Real Emotions। आप सबका एक बार हार्दिक स्वागत है एक और एपिसोड में जहां पे हम बात करेंगे रियल पीपल की और उनके रियल इमोशंस की। पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे जी.आर. शनमुगप्पा से, who has been the president of AIMTC and currently is a very renowned leader in South India। इनफैक्ट उनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर आधी रात को कोई ट्रकर उन्हें फ़ोन करे किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, GRS या उनके आर्मी में से कोई न कोई उस ट्रकर की सहायता के लिए पहुंच जाता है। उनका कंट्रीब्यूशन इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही सराहनीय है और शायद इसीलिए भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने GRS को रोल मॉडल कहा था। GRS की जर्नी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। He started his career as a porter in Chennai and today he is not just a transporter but also a successful entrepreneur। आज के एपिसोड में हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे GRS के साथ और साथ ही साथ ये भी सुनेंगे कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने GRS और इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कहा। लेकिन सबसे पहले here are the headlines of the week। Ashok Leyland ties up with Shriram Auto Mall to enter the used commercial vehicles business। Tata Motors registered total sales of 1,99,633 units in Q3 financial year 22, grows by 26% over Q3 last year। VE Commercial Vehicles sells 6,154 units in December 2021। Ashok Leyland reports marginal increase in sales during December। Mahindra Auto sells 39,157 vehicles in December 2021, registering a double-digit growth of 11%. More news and our interaction with GRS coming up after this very short break. Stay tuned and keep watching Trans India। याद है कुछ इसी तरह का स्टंट मैंने आज से करीब 30 साल पहले भी किया था, लेकिन आज इस डबल ट्रक्स के स्टंट की वजह कुछ और है। डबल गारंटी पेश है नया महिंद्रा फ्यूरियो 7 जो आता है डबल गारंटी के साथ। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनके नए महिंद्रा फ्यूरियो 7 का माइलेज आपके मौजूदा ट्रक से ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कर दीजिए ट्रक वापस। नया महिंद्रा फ्यूरियो 7 आपको देता है गारंटीड रीसेल वैल्यू 5 साल के बाद। खरीदते समय माइलेज की गारंटी और बेचते समय रीसेल वैल्यू की गारंटी, तो हुई ना डबल गारंटी। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू ट्रांस इंडिया। आज हम बात करेंगे GRS से, जिनकी जर्नी वाकई में एक इंस्पिरेशन है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कई लोगों के लिए। The hard work and dedication put in by GRS has not just been appreciated by the road transport fraternity but also by the President of India। मुझे आज भी याद है जब GRS AIMTC के प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे, उनकी ये दिली ख्वाहिश थी कि उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी में भारत के राष्ट्रपति मौजूद हो। He wrote a letter to the President of India which incidentally landed into the hands of the President himself। दोस्तों, आप इसे इत्तेफाक कहें या किस्मत का खेल, but the letter written by GRS landed in the hands of Dr. Abdul Kalam। Dr. Abdul Kalam invited GRS to Rashtrapati Bhavan and the meeting, which was scheduled for just 15 minutes, went on for over 3 hours। Dr. Kalam agreed to be part of GRS's installation ceremony in Bangalore। दोस्तों, हज़ारों ट्रांसपोर्टर, हज़ारों ट्रकर्स और उनके बीच भारत के राष्ट्रपति रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की सराहना करते हुए ये मंजर आज तक शायद किसी ने नहीं देखा होगा। आज के डेट में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तक से मिल नहीं पाती है और यहाँ भारत के राष्ट्रपति हमारे बीच मौजूद थे। एंड दिस इज व्हाट ही हैड टू से अबाउट GRS एंड द रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। लिसन टू दिस क्लिप वेयर वी हियर डॉक्टर अब्दुल कलाम speaking at GRS's installation ceremony in Bangalore। I have normally I talk about role model, how the great people in this country, they became role model for various, it may be academy, it may be national development, but I find when I am sitting with you, by my side,
His name is Shanmugappa. He is an industrialist also. So I was asking him just now, how did you, you are a laborer, you are a cleaner, what made you to become a great guy, great man in the society, in industry? He told me, a secret he told me. The secret was, when people were sleeping in their houses after good dinner, and he was awake. When people were sleeping, he was awake, he was driving his trucks. So friends, that's how by my side, Shanmugappa was sitting. So you may be having such a role model, many in this crowd. So I wish you all the best. God bless you, because you are part and parcel of the nation and nation's economy, and the nation's grateful for you when you are driving millions and millions of kilometers from one part of the country another part of the country. You are not just driving the truck, not lorry you are driving. You are driving the Indian economy. And you are driving the Indian economic power. So I like to congratulate all of you. Friends, that was Dr. APJ Abdul Kalam, the then President of India, addressing the road transport industry. As I told you, it was a proud moment for the entire road transport industry. We all know Dr. Abdul Kalam as being a very humble and down-to-earth person. And who better person could we have at this function? Well friends, we'll continue our interaction with GRS and more news updates from the road transport industry coming up right after this very short break. Stay tuned and keep watching Trans India. Real people, real emotions. याद है, कुछ इसी तरह का स्टंट मैंने आज से करीब 30 साल पहले भी किया था। लेकिन आज इस डबल ट्रक्स के स्टंट की वजह कुछ और है। डबल गारंटी। पेश है नया महिंद्रा फ्यूरियो 7, जो आता है डबल गारंटी के साथ। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनके नए महिंद्रा फ्यूरियो 7 का माइलेज आपके मौजूदा ट्रक से ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कर दीजिए ट्रक वापस। नया महिंद्रा फ्यूरियो 7 आपको देता है गारंटीड रीसेल वैल्यू 5 साल के बाद। खरीदते समय माइलेज की गारंटी और बेचते समय रीसेल वैल्यू की गारंटी। तो हुई ना डबल गारंटी। In our major news this week, Ashok Leyland signed a MOU with Shriram Automall India Limited to launch an exclusive hybrid ecosystem for its used commercial vehicle business. The Phygital platform, as it is called, will facilitate an exchange and proper disposal and purchase of old commercial vehicles. With the entry into this segment, Ashok Leyland aims to streamline the used vehicle market by leveraging its digital ecosystem, its existing and potential channel partners for physical interactions in over 100 auto malls spread across the country, and other advanced technologies. Through effective and efficient processes, the company will bring in more transparency into this space, thereby increasing options to reduce the number of old vehicles plying across the roadways of India. The customers will also have access to other value-added services like iAlert telematics solution, Driver Sathi skilling solution, valuation, breakdown services, fuel solutions, etc. through various digital solutions offered by Ashok Leyland. Commenting on this business expansion, Mr. Sanjay Saraswat, head M&HCV Ashok Leyland, said, "With our aspirations to be an end-to-end mobility solutions provider, this partnership will help establish our presence in the pre-owned commercial vehicle segment. With our experience as one of the largest truck makers, this initiative will help debottlenecking the ecosystem through a consumer-centric digital solution which will help serve as an easy-to-use touchpoint for our consumers. This initiative will also help in implementation of the scrappage policy at the grassroots level and help us move towards a greener future." Speaking about the partnership, Mr. Sameer Malhotra, CEO Shriram Automall India Limited, said,
It gives us immense pleasure to collaborate with Ashok Leyland to mark their entry into the used vehicle market. Shriram Automall is living on to the mission to bring innovative digital solutions to enhance the customer experience to next level through the OEM's expertise of the commercial vehicle segment and our phygital auction. Through the OEM's expertise of the commercial vehicle segment and our phygital auctions platforms, which include 100 plus Automall network strength spread across India, we aim to create all-inclusive mobility solutions for buyers and sellers. While OEMs and their partners keep coming up with new initiatives for the road transport industry, let us see how the automobile majors, rather how the commercial vehicle manufacturers have performed in the last month. Tata Motors reported a growth of 4% in the overall commercial vehicle segment. In the iron LCV segment, Tata Motors reported a growth of 11% over last year, selling 5,130 vehicles as compared to 4,619 vehicles last year. In the passenger carrier segment, Tata Motors reported a growth of 84%, selling 1,380 vehicles in December 21. In the SCV cargo and pickup segment, Tata Motors reported a growth of 2%, selling 16,392 vehicles. In the MNHCV segment, however, Tata Motors reported a marginal drop of 3%, selling 8,106 vehicles. In Q3 FY22, Tata Motors reported an overall growth of 10% in the commercial vehicle segment. The MNHCV segment recorded a growth of 15%, selling 22,016 vehicles. The iron LCV segment recorded a growth of 22%, selling 15,828 vehicles, and the passenger carrier segment recorded a growth of 61%, selling 3,521 vehicles. In the SCV cargo and pickup segment, Tata Motors sold 49,164 vehicles in Q3 FY22, a growth of 3% over Q3 FY21. Commenting on the performance of Tata Motors, Mr. Girish Wagh, Executive Director, said, Tata Motors commercial vehicle domestic sale in Q3 FY22 at 90,529 units was 15% higher than the previous quarter and 10% higher than the same quarter last year. The retail was ahead of the wholesale by 15% in December 21, enabling inventory alignment. The SCV and ILCV segments continued to benefit from the growth in e-commerce and the increasing need for last mile delivery. Construction and infrastructure spending by central and state governments, plus rising activity in sectors such as mining, petroleum, oil lubricants, and allied industries facilitated the demand for MNHCVs. The international business too continued its recovery momentum and grew by 10% over the previous quarter and 33% over the same quarter last year. Going forward, we expect the situation to remain fluid as the semiconductor shortage continues, instances of COVID begin to rise, and underlying demand continues to remain under pressure. We are keeping a close watch on the evolving situation and sharpening our agile, multi-pronged approach to fulfill customer orders. VE Commercial Vehicles Limited, a Volvo Group and Eicher Motors joint venture, recorded sales of 6,154 units in December 2021 as compared to 4,892 units in December 2020. The following are the key highlights for VE Commercial Vehicles in 2021 December. Eicher branded trucks and buses recorded sales of 6,002 units in December 2021 as compared to 4,687 units in December 2020. In the first 9 months of the current financial year, Eicher recorded sales of 36,173 units as compared to 22,464 units last year. In the domestic commercial vehicle market, Eicher branded trucks and buses recorded sales of 5,192 units in December 2021 as compared to 4,069 units in December 2020. In the first 3 quarters of this financial year, Eicher sold 29,853 trucks in the domestic market as compared to 19,320 trucks last year. Meanwhile, Mahindra & Mahindra sold 15,938 vehicles in December 2021 with growth of 14%. All the light commercial vehicle segments of under 2 tons, pickups 2 to 3.5 tons and more than 3.5 tons and the Hemi commercial vehicles registered growth in December 2021. In the LCV segment of less than 2 tons, Mahindra & Mahindra sold 2,822 units in December 21 as compared to 1,989 units in December 20, a growth of 42%. In the LCV segment of 2 tons to 3.5 tons, Mahindra & Mahindra sold 12,532 units in December 21 as compared to 11,400 units in December 20, a growth of 10%. In the LCV segment of more than 3.5 tons and the MNHCV segment, Mahindra & Mahindra sold 584 units in December 21 as compared to 541 units in December 20, a growth of 8%.
In the financial year so far, Mahindra & Mahindra recorded a growth of 84% in the LCV segment of more than 3.5 tons and the MNHCV segment. The company sold 4,321 vehicles in FY22 so far as compared to 2,346 vehicles in FY21 in the first 9 months. Hinduja Group company Ashok Leyland too had a very impressive December 21 as well as a good 21 year on the whole so far. In the MNHCV truck segment, Ashok Leyland recorded a growth of 4%, selling 6,137 vehicles in December 21 as compared to 5,928 vehicles in December 20. The cumulative sales in the current financial year has recorded a growth of almost 60%, with the company selling 34,143 trucks until December as compared to 21,343 trucks in the first 9 months last year. In the LCV segment, however, Ashok Leyland recorded a degrowth of 17%, selling 4,741 vehicles in December 21 as compared to 5,682 vehicles in December 20. The cumulative growth, however, was up by 22%, with the company selling 36,251 LCVs in the first 9 months of 2021. With truck sales recording growth in December and e-way bill numbers also recording a growth in December as compared to the previous month, we are clearly seeing that the road transport industry is gaining momentum. Transporters are ready to invest in trucks even though profit margins are still under pressure. Fuel prices may have decreased marginally, but that has not deterred competition. Transporters are still fighting over freight rates, and naturally the winners have been the customers. We just hope that the road transport industry doesn't lose this momentum. As we have been reading in the last few days, COVID cases have been growing across India. The new variant has been striking people, and yes, this can hit the fortunes of the road transport industry in the days to come. But one thing that will not stop is the service by the road transport industry. जी हाँ दोस्तों, स्टेट्स चाहे लॉकडाउन कर ले या कुछ भी कर ले, ट्रक्स को रोकना नामुमकिन है। आपके एसेंशियल सर्विसेज, आपके मेडिसिन, आपकी रोज की चीज़ें आज भी एक ट्रक के द्वारा आप तक पहुँचती हैं। वी जस्ट होप and we request people to stay safe and follow safety protocols. हालांकि ये ट्रक ड्राइवरों के लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि उन्हें हाईवेज पर होना है, बट हम चाहेंगे कंपनीज जहाँ पर ड्राइवर्स माल ले जाते हैं वो ड्राइवर्स को बेसिक फैसिलिटीज दे so that they don't have to loiter around outside the factory gates. Well friends, that was it from the news segment this week, and coming up after this very short break is our interaction with G.R. Shanmugappa, the man who has made this industry proud. Stay tuned and keep watching Trans India, real people, real emotions. याद है कुछ इसी तरह का स्टंट मैंने आज से करीब 30 साल पहले भी किया था, लेकिन आज इस डबल ट्रक्स के स्टंट की वजह कुछ और है। डबल गारंटी। पेश है नया महिंद्रा फ्यूरियो 7 जो आता है डबल गारंटी के साथ। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनके नए महिंद्रा फ्यूरियो 7 का माइलेज आपके मौजूदा ट्रक से ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कर दीजिए ट्रक वापस। नया महिंद्रा फ्यूरियो 7 आपको देता है गारंटीड रीसेल वैल्यू 5 साल के बाद। खरीदते समय माइलेज की गारंटी और बेचते समय रीसेल वैल्यू की गारंटी, तो हुई ना डबल गारंटी। सरकार बाद में मेजर रोल टोल, एक दिन 101% टोल निकाल के जाएगा हम लोग, मगर पैसा पे करेगा सरकार को, उसमें हम बीच में नहीं जाएगा। पैसा नहीं दिया तो रोड कैसा बन सकता है? रोड बनाना रहे तो पैसा लाना पड़ेगा, पैसा विदाउट पैसा कैसा बनाना पड़ेगा? रोड भी चाहिए, टोल भी चाहिए। अभी केरला में क्या किया? क्या है हमारा टोल? आप पैसा देने को तैयार हो, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? मेजर प्रॉब्लम देखो, अभी केरला वाला मना कर दिया, हमको टोल भी ज़रूरत नहीं है, रोड भी ज़रूरत नहीं है। हमको टोल भी ज़रूरत है, रोड भी ज़रूरत है। इसलिए हम क्या बोला, 40 पर 8 टोल है तमिलनाडु में, 26 टोल में कलेक्शन करके कंप्लीट हो गया। 15 साल हो गया, पूरी 15 साल। सब टोल वो टाइम में 300 करोड़ 400 करोड़ एक स्ट्रेच में 60 किलोमीटर में मेजर 500 करोड़ का अंदर रोड डाल दिया। 12 साल 15 साल पीछे लेवल रोड था। अभी रोड करने के बाद
फिर भी ये लोग 15 साल से कलेक्ट करके आया, इसको पूछने वाला नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को खुद बताया हमें अभी, देखो ये टोल इलीगल है, हमारा ये टोल के ऊपर ये कलेक्शन नहीं करना। ये स्टेट कैसा परमिशन दिया वो लोग को बिगिनिंग में? आप क्या दिया परमिशन? आपका रोड में 10 साल कलेक्ट करेगा, बाद में मेंटेनेंस चार्ज कलेक्ट करेगा कर को अग्रीमेंट लिखा था टीआर बालूजी टाइम में। बाद में वो बदली कर दिया। वो बदली करने के बाद कमलनाथ बदली किया, हमारा फर्नांडिस जी आया था वो बदली किया। एक एक मिनिस्टर बदली करके जाने का है। एक दफा एक सिस्टम लगाने के बाद 10 साल 15 साल ये चेंज नहीं होता है। 15 साल कलेक्शन करके, इसलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट बोल दिया शॉर्टली सब टोल बंद करेगा, छोड़ेगा नहीं। कौन सा रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, इतना दिन कलेक्ट किया आप लोग, आपका इतना दिन अकाउंट में कम करे के बाद कैसा कर सकता है? ये क्या भी नहीं, हम पूछना पड़ेगा। देखो वालाजा टू चेन्नई श्रीपेरुम्बुतूर एक रोड है, उसमें रोड रिपेयर नहीं किया, ठीक से काम नहीं किया। कोर्ट वाला खुद बोल दिया अभी 50% टोल दो, यस्टरडे नोटिफिकेशन निकाल दिया। ये अभी तमिलनाडु में कैसा बता सकता है? आपका 48 टोल हम लोग 16 टोल कर देगा। ऐसा केरला में 1700 किलोमीटर है, 3 टोल है, हमारा कैसा हो गया ऐसा? इसके लिए हम लोग बहुत फाइट करना पड़ेगा इसके ऊपर, मगर टोल को पैसा देने के लिए हम रेडी है। सरकार को हम पैसा नहीं देता कर कभी भी नहीं बताता है, ये लोग रॉन्ग कर डालता है। ये प्राइम मिनिस्टर देखना पड़ेगा ये चीज़ को। टोल पैसा देने के लिए रेडी है हम लोग, हमको टोल हटाओ, टोल पैसा देने के लिए रेडी है। कैसा सिस्टम है? अभी कम से कम 516 टोल है लास्ट मंथ तक। 516 टोल में पूरी इंडिया में कम से कम 60 लाख व्हीकल्स राउंड द क्लॉक हमारा नेशनल हाईवे ऊपर रहता है। 60 लाख में 13,50,000 नेशनल परमिट है। नेशनल परमिट ओनली 13,50,000 है, बाकी सब स्टेट में फिरने वाला है। अभी बेंगलुरु टू दिल्ली जाता है, दिल्ली टू बेंगलुरु आता है, 2 चक्कर पड़ता है। अभी हम लोग इसको पीछे हमको बहुत दिन लग जाता, 20 दिन लग जाता था, अभी 12 दिन में 15 दिन में आ जाता है दिल्ली जाके। हम लोग टोल में बेनिफिट है, हमको नहीं करके बोला नहीं। रोड बनाया, बहुत बढ़िया बनाया, रोड बहुत बड़ा यूज़ हो गया हमारा, मगर टोल कलेक्शन को हम लोग क्या बोलता है, 60 लाख व्हीकल के ऊपर सरकार बोलता है 36,000 करोड़ हमारा ईयरली टोल के ऊपर कलेक्शन होता है करके 2018 में बताया था नितिन गडकरी जी, पार्लियामेंट में बताया था। हम लोग क्या बोला, 36,000 करोड़ एडवांसली आपको दे देगा। आपको प्रॉब्लम क्या है? पूरी 60 लाख व्हीकल्स हम लोग खाली 60,000 रुपीज़ एक व्हीकल को एडवांसली पैसा दे देगा। एंटायर कंट्री में पर डे 2 करोड़ खर्चा होता है, 2 करोड़ से 3 करोड़ खर्चा होता है वो टोल बूथ के लिए, वो भी आपको बच जाएगा। एडवांसली हम पैसा दे दो तो आपको इंटरेस्ट बेनिफिट भी मिल जाएगा। ये टोल करने वाला को सेटल करके भेज दो, प्रॉब्लम क्या है? एवरी ईयर देगा। ऐसा ही नेशनल परमिट है, लॉन्ग परमिट है, इसके ऊपर हम लोग क्या करता है, डीजल कंजम्पशन पर डे डीजल 18,000 करोड़ मिलता है। एक साल का एक दफा सरकार को 1 रुपया ज़्यादा किया तो 18,000 करोड़ पैसा मिलता है। 2 रुपया कर दो हमारा डीजल के ऊपर, 36,000 करोड़ आपका डायरेक्टली पैसा आ जाता है। ये 2 सब्जेक्ट में प्रॉब्लम क्या है सरकार को, हमको समझ में नहीं आता है। एडवांसली पैसा मिलने का है, सरकार को प्रॉब्लम नहीं है। हमारा टोल अभी फॉरेन में 700 किलोमीटर जाता है, हमारा इंडिया में फिर भी 300 किलोमीटर में फंस गया हम लोग। बेंगलुरु टू दिल्ली जाना रहे हो तो कम से कम 40 टोल है। 40 टोल में एक टोल में 15 मिनट इसके पीछे रुकता था। अभी फास्टैग आने के बाद फिर भी 5 मिनट रुकता है, नहीं तो व्हीकल नहीं जाता। क्यों? ट्रैफिक रहता है, सामने वाला ये पैसा नहीं रहता है, एक दफा रुक के जाता है। हम फास्टैग डालने के बाद भी 96% तक अभी फास्टैग डाल दिया, डालने के बाद भी 5 मिनट रुकता है। हम व्हीकल क्यों रुकना? हाईवे में 1 सेकंड भी नहीं रुकना। बहुत जगह में सिस्टम ऐसा है, आप लोग ये काम कर दिया तो कौन पैसा खाता है, कौन पैसा लूटता है करके सब सरकार को मालूम हो जाता है।
सरकार मेजर इसमें इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा। हमारा पास कैसा, आप एक दवा ले लो, आपको कैसा कॉस्ट होता है उतना लेके उसको दे दो ना। टोटल कंसेशनर को कितना एक साल को पैसा मिलता है वो लोग आपको बताता है, दे दो। प्रॉब्लम क्या है? अभी फास्टैग में आपको मालूम हो जाता है उसको कितना पैसा मिलता है, क्या मिलता है, अगर हम देने के लिए रेडी है। प्रॉब्लम क्या है उसको? इसके लिए हम एडवांस लीजिएगा ना। टोटल मोड ऑफ कलेक्शन कितना, रोड डालने के बाद 10 साल होने के बाद आपको गवर्नमेंट को क्यों पैसा चाहिए रोड के ऊपर? कंसेशनर का पास आप पैसा लेने का जरूरत क्या है? सरकार बिल में लेता है, ब्राइब नहीं है, पैसा लेता है, वो एक पोर्शन लेता है NHI, ये क्यों जरूरत क्या है? हम लोग डीजल के ऊपर भी चेस दे दिया, बाद में सेंट्रल एक्सेस भी दे दिया, पेट्रोल डीजल में भी इंक्रीज कर दिया। हम एक आदमी कितना तकलीफ आएगा हम लोग को, थिंक कर दीजिए। ये व्यवसाय के ऊपर बहुत तकलीफ आ रहा है। इसके लिए हमारा मुद्दा क्या है? हम लोग स्टैंड होना पड़ेगा, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट एंड तालुक में बाड़ा फिक्स करना पड़ेगा, लोडिंग अनलोडिंग नहीं देना करके बोलेगा। आगे 2 महीने का बाद एक स्लोगन निकलेगा, कहाँ भी इंडिया में ट्रकर टोल नहीं देगा। हम कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करता है, कंजाइनर टोल देने दो। हमको प्रॉब्लम क्या होता है? ये बस वाला टोल नहीं देता है, टैक्सी वाला टोल नहीं देता है, कोई भी टैक्सी वाला टोल नहीं देता इंडिया में। टोल खुद वो पार्टी देता है। हमारा कंजाइनर भर दो, हमको प्रॉब्लम क्या है? ये टोल, ये लोडिंग अनलोडिंग ये बंद हो गया तो उसके बाद में ब्राइब 40,000 करोड़ ब्राइब होता है कर गवर्नमेंट बोलता है सब जगह में। 40,000 करोड़ हमारा बेंगलुरु दिल्ली जाता है, नेशनल परमिट है, व्हीकल में फुलफिल है, डॉक्यूमेंट्स है, इंश्योरेंस है, सब एक दफा चेक कर दो। नहीं तो 1 महीना का एक दफा चेक कर दो, ऑनलाइन में चेक कर दो। हमारा व्हीकल नंबर डाल दिया तो ऑनलाइन में आ जाता है, क्यों बिक्री किया, क्या किया, वो सब मालूम होता है आपको। एक मिस्टेक कर दिया तो आपको पूरा देश में कहाँ भी नंबर मार दिया तो मालूम हो जाता है। हम लोग को प्रॉब्लम क्यों रुकता है हमारा व्हीकल? हमको रुकने का जरूरत नहीं है। टोल में क्यों रुकता है हमारा व्हीकल? 5 मिनट रुक के जाता है। ऐसा ही RTO बूथ में क्यों रुकना हम लोग? RTO बीच बीच में RTO क्यों? ये 25-50 किलोमीटर को कर्नाटक में, राजस्थान में, पूरा इंडिया में कैसा हो सकता है? ये बहुत बड़ा गलत बात है। हम लोग सरकार का लड़ा अभी ठीक है। डे बिफोर यस्टरडे नोटिफिकेशन निकाला, स्टेट गवर्नमेंट RTO ऑफिस निकाल देगा ऐसा ऐसा करके नितिन गडकरी जी निकाला। नेक्स्ट आल्टर क्या है? इसको कैसा करेगा आप लोग? उड़ीसा में, एंटायर उड़ीसा में RTO बंद कर दिया, 2-3 साल हो गया। अभी एक ट्रक उड़ीसा में एंट्री जाके आने को टाइम में 1,000-2,000 ब्राइब दे के जाता था, अभी 3,000 को आ गया। वो कैसा हो सकता है? वहाँ मोबाइल वैन लगाएगा, स्क्वाड लगाएगा, चेक करेगा, उसको चेक करने का पावर दे दिया। इसको पीछे 10 चेक पोस्ट है तो 10 चेक पोस्ट में चेक करता था। अभी पूरा देश में कौन कौन RTO है सब आदमी चेक कर सकता है। RTO ऑफिस अभी यहाँ आतिपल्ली से जलकी तक 20 RTO ऑफिस आ रहा है। 20 आदमी आगे खड़ा होएगा। अभी 5 आदमी हमको पैसा लेता था, अभी 20 आदमी आके खड़ा होके पैसा लेगा, आगे सब चेक करेगा। देखो आपको चेक करने में दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है पूछेगा, बोल दो आप। एक दफा RTO ऑफिस में जाता है हमारा व्हीकल, एंडोर्समेंट दे दो, आपका गाड़ी कहाँ भी रुकने का जरूरत नहीं। ऑलरेडी टोल में आप वे ब्रिज डाल दिया, टोल में रुको, गाड़ी आगे मत जाना, रूल दिया, फिर भी आप लोग बदली कर दिया उसको। 10 टाइम टोल लेगा क्या भाई? एक दफा बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है, हाई कोर्ट बोलता है, ओवर डायमेंशन ओवरलोड नहीं जाना। ये टोल वाला को कैसा परमिशन दिया? पैसा दिया तो व्हीकल छोड़ डालना आगे। 2 टाइम कर दिया, अभी 10 टाइम करता था, अभी 2 टाइम टोल लेता है। अभी 2 टाइम हो गया, अभी 10 टन ज़्यादा है व्हीकल में, टोल में व्हीकल आ रहा है, कुछ भी नहीं देखता है। अब ओवरलोड है, अच्छा टोल कितना? 400 है, 800 दो, बस 800 मार के बेच देगा उसको, बस। ये क्या है? ये सरकार का क्या मालूम नहीं है? मालूम पड़ के क्यों ऐसा करता है? सरकार हमको कुछ भी हेल्प मत करो,
हमको बीच में ट्रबल मत करो। ट्रबल देना है तो परवाह नहीं, दूसरा कुछ भी हमको प्रॉब्लम नहीं। पुलिस वाला खड़ा करता है हमारा व्हीकल को, क्या रीज़न है उसको, क्या सब्जेक्ट है उसको खड़ा करने का, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड। टोल में जाके और खड़ा होता है, टोल देता जाता है आगे। ऐसा आरटीओ लोग एंटायर स्टेट में आरटीओ कैसा हो सकता है? एक सरकार नहीं, बीजेपी सरकार होना, कांग्रेस आता है, कांग्रेस भी वही काम करता है। वो स्टार्ट करके जोड़ दिया ऑलरेडी, ब्राइब स्टार्टिंग कांग्रेस से गवर्नमेंट कर दिया, उसको आगे बीजेपी भी आगे ऐसा 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 कंटिन्यूली आ रहा है। ये मालूम नहीं सरकार को। हम टोल बंद कर दिया, आरटीओ बंद कर दिया, बाद में चेक पोस्ट बंद कर दिया। चेक पोस्ट बंद कर दिया ठीक है, कमर्शियल टैक्स चेक पोस्ट बंद किया ठीक है। वो टाइम में कर्नाटक चेक पोस्ट में 30 लाख 25 लाख 30 लाख रेवेन्यू आता था पर डे। अभी पर डे जीएसटी में कैसा कैसा हम तकलीफें देखो। एक व्हीकल जाने को टाइम में, चेन्नई टू बेंगलुरु आने को टाइम में, बेंगलुरु टू हुबली जा रहा है, रास्ते में अनफॉर्चुनेटली फ्लड आ गया, नहीं रहे तो कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, वो व्हीकल 2 दिन रुक गया, 3 दिन जाके अनलोडिंग पॉइंट में जाके पकड़ के पेनल्टी डालता है ये लोग। ऑर्डिनरी पेनल्टी नहीं है। एक दो बहुत दिन से कोशिश करता है हमें, कम से कम 25-30 साल से, ये बीच में मीडिएटर को बंद करना। मीडिएटर को बंद कर दिया तो हमारा बेनिफिट मेजर आ जाता है। ट्रांसपोर्टर ट्रकर एक प्लेटफॉर्म में लेकर आने का कोशिश करना, वही हमारा मुद्दा है, मेन मुद्दा है। ये हो गया, ट्रकर 20-25% बच जाएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रेड में हमको ट्रांसपोर्टर ट्रकर मिलके काम किया तो विन विन सिचुएशन में हमारा आगे हमारा व्यापार भी बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टर को किसी चीज़ में नुकसान नहीं होगा, ट्रकर को भी किसी चीज़ में नुकसान नहीं होगा। अभी हमें DGRL अभी कपास अभी कॉन्टैक्ट किया, डार्सल में कम से कम 200-300 गाड़ी अटैच किया, हम लोग डायरेक्ट हो गया। बीच में हम लोग को क्रॉसिंग का संबंध नहीं है, कमीशन का संबंध नहीं है, कुछ भी नहीं है। अप एंड डाउन लोड्स आराम से मिल जाता है। ऐसा ही अभी गुजरात से साउथ बात करने का लगा। अभी गुजरात टू साउथ आता है, साउथ से गुजरात पर डे 700 गाड़ी जाता है, बड़ौदा, गुजरात, अहमदाबाद सब जगह में। ये परिस्थिति में हम ट्रांसपोर्टर का नज़दीक हो गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? अभी वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है 1 साल के लिए, हमारा ट्रक का भाड़ा क्या करके देके उसको आगे ये 5%, 7%, 8% रख के वो काम करने वाला। रोशन अग्रवाल जी बात किया हमारा पास, आप पर रेट क्या है बताओ, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बेनिफिट लेके आपको लोड दे देगा। ट्रकर को बचाने के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा थिंकिंग है। ये सूज हो गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा ज़िंदगी में। ट्रकर 101% आराम से रख सकता है। इंडस्ट्री को बचाना रहे तो हम फर्स्ट बोलता है ये टोल, बाद में लोडिंग अनलोडिंग, हमारा काम नहीं रहा। ये तो कंटेनर एंड कंसाइनी का काम है। ये काम हो गया, ट्रकर को भी मेजर बेनिफिट होएगा, ट्रांसपोर्टर को मेजर बेनिफिट होएगा। देखो हमारा साउथ में 39 पेट्रोल पंप है, कम से कम 180 to 200 तक ऐसा हमारा सोसाइटी ले है। ये सोसाइटी में बहुत अच्छा चीज़ मिलता है ट्रकर को। बाद में हम लोग नेगोशिएशन करता है, 1 रुपया 50 पैसा कोई भी पेट्रोल पंप में गया तो डीजल का दाम कम रहता है हमारा साउथ में। मेहरबानी करके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में वहाँ ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका एसोसिएशन कब मजबूत होता है, कैसा भी पंचायत राज मजबूत होता है, देश मजबूत होता है। कैसा हमारा ट्रकर तालुक लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में मजबूत होता है, ऑल इंडिया लेवल मजबूत होता है। इसके लिए एक कारण रख के हम लोग डिस्ट्रिक्ट तालुक में जाके एवरी 2 महीना का एक दफा 3 डिस्ट्रिक्ट चार्ज हम कवर करके जा रहा है।
आ रहा है। ऐसी काम पूरा देश में हो गया, हमको बहुत अच्छा हो गया। नॉट ओनली ईस्ट वेस्ट का बेनिफिट है, साउथ का भी अच्छा बेनिफिट आ जाएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में। यही हमारा रिक्वेस्ट है। ट्रकर बचना, ट्रांसपोर्टर बचना, साथ में मिलकर काम करना। कहाँ अच्छा चीज होता है वो आदमी जाने का कुछ भी विकास नहीं करता है। कौन काम करता है उसमें साथ में मिलके काम करने का हमको बहुत इंटरेस्ट लगाता है। हम पॉलिटिक्स नहीं देखता है, ईगो नहीं देता है, कम्युनिटी नहीं देखता है, ये सब नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखता है। कौन काम करता है उसका साथ में आगे। ये ट्रक इंडस्ट्री है, मदर बॉडी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस था, उसमें आठवां हो गया। अभी सिमटा में साउथ में कैसा हम लोग है, ऐसा वेस्ट में, ईस्ट में, नॉर्थ में होएगा। मगर क्यों हमको पसंद आया, 3 महीना में कम से कम हम देखता है 4 मिनिस्टर को मीट किया, 8वां। 1 साल 8 महीना में कुछ भी एक सिंगल मिनिस्टर को मीट नहीं किया, बात नहीं किया ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। इसमें फर्क नहीं, डिफरेंस नहीं दिखता है। कितना आदमी काम करता है पापो, ये ट्रेड में काम करने वाला बहुत कम है। ऐसा बल साहब है, आप बोल दीजिए, फिंगर जोड़ दीजिए कौन कौन काम कर रहा है पूरा देश में। बहुत दुखी लगता है हमको। ऐसा ही ऑल इंडिया लेवल में काम करना रहे तो एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट रहना पड़ेगा। जाके हम कंट्री छोड़ के कंट्री जाके बैठ के ये कंट्री नहीं चला सकता है। 8वां अच्छा लगा, इसको पीछे भी काम करके आता था, अभी साथ में काम करके जाना। 8वां भी, ऑल इंडिया भी, सिमटा भी, सब आदमी साथ में मिलके काम किया तो अच्छा लगता है। बाद में हमारा मुद्दा क्या है, 8वां में बड़ा बड़ा ट्रांसपोर्टर को आर्या जी लेकर आया था, बातचीत हो रहा है। पर डे 700 से 800 गाड़ी गुजरात जाता है, 3000 व्हीकल महाराष्ट्र जा रहा है, कलकत्ता हमारा व्हीकल 700 व्हीकल जा रहा है। ऐसा बिग बिग सिटी में जाने का रास्ता में हम वो लोग मिलके अभी काम करने के लिए शुरू किया था, अभी शुरू कर दिया ऑलरेडी। अभी प्लानिंग में आ गया तो ट्रैक्टर का बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। रनिंग किलोमीटर में एमटी जाने का ज़रूरत नहीं है, जाने का एक रेट, आने का रेट अभी ऊपर नीचे होता है, इसलिए वो लोग को भी बेनिफिट मिलेगा। बीच में मीडिएटर पैसा खाना खाता ना, वो खाता ना, वो बंद हो जाएगा। हम लोग एजेंट को विरोध नहीं करता है, कमीशन लेने दो। ये क्रॉसिंग में लूट रहा है वो हमको पसंद नहीं आता है। यही हमारा मुद्दा है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होना, देश स्ट्रांग होना, देश का पितामह स्ट्रांग होना। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होना, ऑल इंडिया में एक मजबूत प्रेसिडेंट आना पड़ेगा। मजबूत मत स्ट्रांग ओनली नहीं है, सब टेक्निकल सब्जेक्ट मालूम होना पड़ेगा उसको। रूट लेवल से 25 साल 20 साल ऑर्गेनाइजेशन साथ में जोड़ के आदमी आ रहा है ना, वो लोग ये काम को एलिजिबिलिटी होता है। इसके लिए आगे आने को टाइम में एंटायर कंट्री हम लोग टाइम में 3 लाख किलोमीटर हम एंटायर कंट्री गया था 6 साल में। बेंगलुरु टू दिल्ली भाई कार में गया, कलकत्ता गया, सब जगह में गया। ये टोल का मुद्दा भी हम लोग एक जगह में जाके, टोल का भी प्रॉब्लम था, 1,70,00,000 उसको पेनाल्टी भी लग के आ गया हमें। ऐसा एक काम करना रहे तो इसमें हम एडिट होना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन में एडिट होना पड़ेगा। संस्था से हमको क्या मिलता है वो नहीं देखना, हमारा से संस्था को क्या मिलता है वो देखना पड़ेगा। वही मुद्दा रख के हम लोग आगे जा रहा है। 70 पर 2 साल होने के बाद भी हम लोग रात दिन काम करने का जरूरत क्या पड़ा। यंग आदमी को साथ में लेके जाना, ईगो नहीं रहना, पॉजिटिवली संस्था को लेके जाने के लिए संस्था कोशिश करना पड़ेगा। मदर ऑर्गेनाइज किसी चीज़ में भी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट को छोड़ के कभी भी एक सिंगल डे भी हम लोग बाहर नहीं आ सकता है। ऑर्गेनाइजेशन में कमज़ोर क्या है वो बताने के लिए हमारा ड्यूटी है, वो सब पक्ष में होता है, नहीं तो रेक्टिफाई हो नहीं सकता ये। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बड़ा रहना, संस्था बड़ा रहना। Well friends, that's it from Trans India this week. Next week we shall bring to you a very special interaction with a mother-daughter duo who have been working together in their transport company. This will be part of a series with Aishar's Nai Soch. So stay tuned and keep watching Trans India, and before you go, don't forget to subscribe to our channel and spread the word around. Until next week, stay safe. Jai Hind.